Hello friends, welcome to iExamB. I'm Satakshi and I'm your English faculty at iExamB, and here today we will discuss what your SBI PO pre 2020 paper, and particularly we will discuss the English section. So friends, now this is the Zero Se PO series that we have started on our YouTube channel, iExamB YouTube channel, and this will be very beneficial for you, especially if you are appearing for your banking exams, and very essential because your IBPS PO exam is just round the corner. So every day at 4 p.m. you will have this series where you will be able to solve the previous year papers and also understand that what kind of questions you can expect this year also. So friends, this series today, as we are doing English, someday you'll do quant, and someday we'll bring to you GA, and someday we will bring to you reasoning, right? So like this, all the subjects will be covered and you will be able to understand especially that what kind of questions come, and also practice those questions. That is very essential. Now friends, everyone knows that practice makes a man perfect, so it is very essential that you sit for these sessions with a pen and a paper, and साथ आप just along with us keep on practicing, so that you know in this 1 hour जो आपका ये है 1 hour 45 minutes जो भी है, ये आपका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाए इनका. कैसे होगा? जब आप हमारे साथ साथ पढ़ाई करेंगे, बिकॉज हमें लगता है कि हम सुनकर सीख लेंगे, बट देन जब तक हम खुद नहीं करते हैं, इट डज नॉट गिव अस दैट इफेक्ट, राइट? सो ज़रूर make it a point that you are sitting with a pen and a paper, and definitely follow us for these sessions, और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे अपनी तैयारी करने में. ऑलराइट, सो अगर कुछ ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं जो हर साल हम देखते हैं, राइट? सो वी सी दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एवरी ईयर, एंड नाउ वी विल डिस्कस दैट व्हाट आर सच क्वेश्चंस. और हम देखेंगे कि लास्ट ईयर आपका 2020 में SBI PO प्रीलिम्स में व्हाट वर द क्वेश्चंस दैट केम. एंड फ्रेंड्स, ये हम सबको पता है कि जैसा थोड़ा बहुत SBI PO में एक बार आता है, फिर थोड़ा IBPS PO वाले भी बहुत वेरिएशंस कर वो चीज़ें लाते हैं, राइट? आप एक और बात मैं बता दूं, PO प्रीलिम्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा फियरफुल नहीं होना है, बिकॉज बहुत पैटर्न में बहुत एक्सट्रीम वेरिएशन नहीं आता है, लिटिल स्लाइट वेरिएशन आएगा, बट देन इट इज़ वेरी मच डूएबल. ठीक है? सो डोंट गेट स्केयर्ड ऑफ द फैक्ट दैट बहुत पैटर्न चेंज होता है. डोंट वरी, बट जस्ट आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं, देन ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन इन एनी पैटर्न, राइट? सो अभी हम आगे देखते हैं. हमें आए एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चंस. नाउ व्हाट आर दीज एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस? कन्वेंशनल पैटर्न आपका होता है कि आपको एक सेंटेंस दे दिया गया है, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और लास्ट पार्ट आपका नो एरर दिया जाता है. अगेन आई विल रिपीट इन इंग्लिश फॉर दोज हु डोंट फॉलो इन हिंदी. So in conventional error detection pattern, you're given one sentence that is divided in 4 parts, and the 5th part is no error, right? And you have to spot the part that contains the error. Now the error can be usually based on rules of grammar, and sometimes now since you know there are so many patterns of error detection that can be introduced, and we have been seeing those patterns, so अलग अलग पैटर्न्स आते हैं. नाउ समटाइम्स एरर डिटेक्शन वैसे मेजरली आपका ग्रामर बेस्ड एरिया माना जाता है. लाइक फॉर दिस यू मस्ट नो ग्रामर, बट देर आर सम पैटर्न्स लाइक there was this pattern seen in I think 2020, I'm not sure, in IBPS PO, but उसमें आपको 4 words were highlighted, okay, and you had to identify that which word is incorrect in terms of usage, grammar or spelling, right? So in any way error can be introduced, so be prepared to face that. All right, so there are various patterns of error detection, and I have discussed so many patterns in a video explicitly. So do refer to that video. It is I think titled different patterns of error detection, and similarly we have different patterns of fill in the blanks also. So do refer to both of these videos, so that you know that what are the different patterns that you can expect in fill in the blanks as well as error detection. So friends, बहुत ज़्यादा आपको you don't have to be scared, okay? बहुत ज़्यादा डरना नहीं है.
क्योंकि पैटर्न क्या है आपका, एरर है, तो एरर पे क्वेश्चंस आपके 5 आ जाएंगे, फिलर्स के आपके 5 आ जाएंगे। मेजर जो आपके टॉपिक्स हैं दे रिमेन द सेम, राइट। जैसे वर्ड स्वैपिंग आपका आ जाएगा, दिस हैज बीन कमिंग सिंस पास्ट 3 to 2 years, राइट। और आपका इडियम्स आ जाएगा, ये भी हमें पता है आते रहते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपका आ जाएगा। कुछ टॉपिक्स हैं जो एकदम फिक्स्ड हैं, आते ही आते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, फिर इसके बाद आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया। दीज आर सम क्वेश्चंस जो डेफिनेटली दे कम, उनके नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं, द नंबर्स कैन वेरी अ लिटिल, बट देन यू गेट दीज टॉपिक्स, राइट। So let's quickly move to questions now. So first question, now you got double fillers, right? Now you can expect double fillers, single fillers this year, or you may expect any of those patterns that I have discussed in that video. वो वीडियो आप जरूर देखें। एंड फिलहाल के लिए let's solve what came in 2020 SBI PO prelims. So the question says, last year we were made to go back to first principles and dash that so many of the things we assumed as being necessary were in fact quite dash. ठीक है, so the moment we read this sentence we know that because this line has been said, right, were in fact quite dash means they were not necessary. ओके, क्योंकि यहाँ नेसेसरी बोला है, फिर उसका ऑपोजिट निकले वो, ये इसका मतलब है। तो मतलब नेसेसरी का ऑपोजिट क्या होगा, एक्सपेंडेबल। ओके, सो लेट्स सी, डिस्कवर्ड फिट हो रहा है। यस, लास्ट ईयर वी वर मेड टू गो बैक टू first principles and discovered that so many of the things we assumed as being necessary were in fact quite what, expendable. Okay, so मतलब कि they were quite dispensable, ये मतलब होता है expendable का। So option 2 is the correct answer here, discovered and expendable. All right, now आगे चलते हैं। यहाँ क्या बोला है, this is probably the time to adopt a new way that dash many habits of the past. Okay, मतलब that takes up मतलब कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले रहा है, राइट। सो यहाँ पे टेक्स अप तो फिट नहीं होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हाथ में लेना, इट इज नॉट फिटिंग हियर। नाउ अगेन दिस सेज, दिस इज probably the time to adopt a new way that sheds many habits. तो अभी किसकी बात हो रही है, what is the subject here? अब हमें देखना है कि शेड आना चाहिए कि शेड्स आना चाहिए। अब शेड कब आएगा, व्हेन आवर सब्जेक्ट इज व्हाट, योर सब्जेक्ट शुड बी प्लूरल। पर यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, अगर आप थोड़ा सा सोचें, व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर, द सब्जेक्ट इज न्यू वे, अ न्यू वे, राइट। तो यहाँ पे न्यू वे के बारे में बोल रहे हैं। सो न्यू वे क्या है, सिंगुलर है, यहाँ यूसेज ऑफ अ ऑल्सो शोज न्यू वे सिंगुलर है। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या डालेंगे, दैट शेड्स मेनी हैबिट्स ऑफ द पास्ट, habits that fed on themselves and assumed the form of what, inevitability. Okay, मतलब कि उन्होंने ऐसा assume करा, उन habits ने एक ऐसा फॉर्म ले लिया that these habits are inevitable, मतलब कि इनसे बचा नहीं जा सकता है, ये तो होनी है habits, right? So yes, one fits in correctly. Now moving on to the next question. एक बार try करें खुद से इसको। So here it says without a far more dash. So without a far more dash and equitable public healthcare system, any focus on economic development will be dash meaningless. Okay, तो मतलब किस बारे में बात हो रही है, ये बात हो रही है कि एक अगर पब्लिक हेल्थ के सिस्टम जो है इक्विटेबल, ठीक है, या और डैश यानी कि कैसा नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट, प्रॉस्पेरिंग, एफिशिएंट। तो एफिशिएंट हो सकता है कि एफिशिएंट पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज एफिशिएंट। प्रॉस्पेरिंग, तो इसमें प्रॉस्पेरिंग इज नॉट होल्डिंग मच सेंस, वो कोई मतलब नहीं बना रहा है, राइट, क्योंकि प्रॉस्पेरिंग का मतलब होता है
कि जो बहुत ज़्यादा फले फूले, राइट। सो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है, सो वो उसके साथ करेक्ट एडजेक्टिव जो है एफिशिएंट हो सकता है, या स्ट्रॉन्ग या रोबस्ट। ओके, सो रोबस्ट और एफिशिएंट को हम नैरो डाउन करेंगे इन पर। क्यों? क्योंकि रोबस्ट मीन्स समथिंग दैट इज जो कि बहुत ज़्यादा रेजिलियंट होता है, राइट। सो रोबस्ट हम यहाँ पे वील ट्राई टू फिट, रोबस्ट आ सकता है और एफिशिएंट आ सकता है, राइट। फिर आगे क्या आएगा? एनी फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल बी नाउ आइदर प्रूव्ड या रेंडर्ड, राइट। सो एफिशिएंट इज ये इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे बिकॉज एग्जीक्यूटेड इज इनकरेक्ट हियर, राइट। तो यहाँ होना चाहिए विल बी rendered meaningless, or like yani ki it will be left meaningless. Okay, so the correct answer is option 3. All right, so robust and rendered. अब आगे देखेंगे हम next question. It says, read करें, I'll give you a moment. Yes, so it says Brexit has dash tensions over the UK's unity in several ways. Okay, so पहली बात तो यहाँ पे ED फॉर्म आएगा, डिस्टेंस्ड, एग्जैजुरेटेड या आपका अपीज्ड। ओके, सो आपका जो है एलिविएट वाला ऑप्शन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ED फॉर्म यहाँ पर आना चाहिए। ओके, so Brexit has dash tensions over the UK's unity in several ways, including dash Northern Ireland at the forefront of UK politics in a way. Now ये यहाँ पे क्या होगा कि including putting Northern Ireland, so putting या ignoring आना चाहिए, मतलब ING फॉर्म आना चाहिए। so putting and ignoring में आ गया है। सो जब फोर फ्रंट में डालने की बात हुई है, सो दे हैव पुट, राइट। सो फोर फ्रंट में इग्नोर नहीं करेंगे, पुट करेंगे। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, एग्जैजरबेटेड एंड पुटिंग। ओके, सो ब्रेक्सिट हैज एग्जैजरबेटेड टेंशंस ओवर द यूकेज यूनिटी इन सेवरल वेज। ओके, मीन्स की और खराब करी हैं टेंशंस को ब्रेक्सिट ने बहुत तरह से, इंक्लूडिंग कि नॉर्दर्न आयरलैंड को पुट कर दिया फोर फ्रंट में ऑफ यूके पॉलिटिक्स इन अ वे इट हैड नॉट बीन सिंस सो एंड सो, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 हियर। ऑल राइट, नाउ मूविंग अहेड. India is guided by high goals like national pride in developing dash vaccines. So vaccines क्या हो सकती हैं? वैक्सीन्स अप्रोप्रिएट हो सकती हैं क्या? अप्रोप्रिएट वैक्सीन्स, बट इट इज यस यू कैन डिफाइन वैक्सीन्स अप्रोप्रिएट, बट डेवलप हुई हैं तो वो कैसी होंगी? इंडिजिनियस, यानी कि आपके उसी देश में बनी हुई वैक्सीन्स। तो इंडिजिनियस इज द करेक्ट यूसेज हियर। एनग्रेन्ड क्या होता है? excuse me, ingrained मतलब something that has been etched somewhere, right? So etched वाला भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है। so यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो indigenous होगा। developing indigenous vaccines, supplying them at low cost to poor countries, having more vaccines to choose from, and thereby inoculating citizens faster. So what is the meaning of inoculating? मतलब उनको shots देना, vaccine देना, right? So the correct answer is option 4 here. All right. Now this is error detection. हमने 5 questions fillers के देखे, 5 questions आपके error के आए थे, right? We know that. अब यहाँ पे this is one pattern that is important for IBPS PO as well, right? So इस चीज़ का आप ध्यान रखें. This you can expect this year. और यहाँ पर one part is highlighted, जो highlighted part है that is correct, okay? And the remaining parts may contain error. उसमें से कोई एक part है जो error free है. One of the remaining parts is error free. You have to see which is the part that is error free, okay? तो अब हम इसमें देखेंगे what is the error. अब हमें error देखना है. So यहाँ पर it says the 7th round of meeting between representatives of protesting farmers and the central government is being held
to resolve the impasse on the 3 farm laws, right? तो जब यहाँ पे impasse की मीन का मतलब हुआ है, ठीक है, सो यहाँ पे ऑन गलत है, यहाँ पे है अगेंस्ट, राइट? क्योंकि 3 फार्म लॉज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो इम्पासे की बात है, इम्पासे अगेंस्ट आएगा यहाँ पर, ठीक है? सो ऑन इज इनकरेक्ट, सो एरर इज लाइंग इन पार्ट सी में एरर है। आगे देखते हैं, बट द गवर्नमेंट रिमेन फर्म ऑन नॉट रिपीलिंग द कंटेंशन लॉज, सो कंटेंशन नहीं, कंटेंशियस लॉज, ओके, यानी कि जिन लॉज की बात हो रही है दे आर कंटेंशियस लॉज, इसीलिए यहाँ पे आंसर जो है दिस इज यूसेज ऑफ दिस वर्ड इज इनकरेक्ट, तो ये भी यहाँ पे चेंज होना चाहिए। सो द एरर इज इन सी एंड डी, ओके, एंड इज बिलीव्ड टू हैविंग, अब जैसे ही आपने बोला इज बिलीव्ड टू हैविंग, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इज बिलीव्ड टू हैव suggested a panel to take the matter forward, right? So error is in part C, D, E, B में कोई error नहीं है, we will mark option B as our answer. Now moving ahead, ये वाला आप खुद try करें एक बारी, I'll give you a moment. Yes, so I hope that you were able to do something here. It says with the center shouldering the responsibility, there is a renewed sense of hope. So renew is incorrect. It should be renewed sense of hope. All right. So this is incorrect. So renewed होना चाहिए. Hope and optimism with the youth as they. So is this correct? यहाँ पे is this part correct? With the youth. So no. This is incorrect. It should be among the youth, right? Optimism कहाँ है? Youth के बीच में है. It's among the youth, right? As they were facing, यहाँ पर बोला है D में were facing challenges in pursuing higher education owing off. So owing off नहीं होता है, owing to होता है, right? So the error here is this. तो यहाँ पर off की जगह to होगा. Financial constraints and the lackluster attitude of state governments. तो यहाँ पर जो correct आपका fragment है that is fragment E. Okay, तो आप option 2 को select करेंगे as the answer. Okay, now moving ahead, another such question. It says with sustained economic empowerment, political representation and educational opportunities, like the boost in the post-matric scholarship for SC students, Dalits are increasingly becoming an inseparable part of the New India story that is deeply inclusive in its foundation, so and so. So इसमें error है कहीं? Tell me, and अगर error है तो कहाँ है? So इसमें जब आप एक्चुअली रीड करेंगे देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस, ओके, और हमें ज़बरदस्ती एरर्स ऐसा नहीं है कि
बहुत बारी एरर डिटेक्शन में ही कुछ ऐसा एक पैटर्न आता है जिसमें योर 3 sentences आर गिवन एंड यू हैव टू सी ऑप्शंस आर गिवन लाइक ओनली 1 contains error, 1 and 2 contain error, लाइक दिस. इस तरह से आपके ऑप्शंस होते हैं एंड उसमें स्टूडेंट्स टेंड टू डू अ लॉट ऑफ मिस्टेक, क्योंकि वो ऐसा ऑप्शन चूज कर लेते हैं जिसमें एरर नहीं भी होता है, येट उसको मार्क कर देते हैं बिकॉज दैट सेंटेंस मे हैव बीन कुड हैव बीन रिटन अ डिफरेंट वे. सो दैट इज वन थिंग, बट दैट फैक्ट कि एक सेंटेंस को हम अलग ढंग से लिख सकते हैं डज नॉट मेक द करंट वन रॉन्ग, राइट. सो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है. ओके, so this is correct. आप इसको पढ़ेंगे, there is no error in this sentence. Now next one is अगर हम इसको पढ़ें, it says the government has reportedly considering. So या तो has आएगा, so has considered होगा, वरना is आएगा. The government is reportedly considering an asset management entity टू फैसिलिटेटिंग ट्रांसफर. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब टू आ गया तो फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ओके, फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक्स, दिस सीम्स करेक्ट. आगे देखें, एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज. ठीक है, तो फिर ये क्या है, विदाउट. सो जब ट्रांसफर की बात हो रही है, ट्रांसफर ऑफ एनपीएस फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू asset reconstruction companies without creating a separate bad bank so and so, right. So यहाँ पे भी error है, it should be to instead of and, all right. So यहाँ पे error कहाँ पे नहीं है, in part C. So part C is errorless here, right. अब आगे बढ़ते हैं. Now there is one more question. ये वाला try करें. यहाँ पे बोला है at the anvil must be the government's plan, right. So at the anvil नहीं, on the anvil होता है, which is the correct usage. एक phrase है, ठीक है, और उसका मतलब ये होता है कि कुछ है कि जो डिस्कशन में है but it is still not ready, okay. So it says on the anvil must be the government's plans for creating farmer producer organizations that would, ये यहाँ पे क्या है, इवन द, यहाँ पे स्पेस कंसिडर करें, इवन द प्लेइंग फील्ड अमंग फार्मर्स एंड लार्जर कंपनीज. सो दो एंटिटीज की बात हो रही है, फार्मर्स एंड लार्जर कंपनीज, तो क्या होना चाहिए, अमंग नहीं, बिटवीन. इट शुड बी बिटवीन फार्मर्स एंड लार्जर कंपनीज, ओके, दैट वुड बाय देयर प्रोड्यूस along the government's plan. So it should be along with the government's plans for so and so. ठीक है, so कहाँ पे error नहीं है, part B is error free. We will mark option 1 as our answer. All right. तो चलिए अब ये आ गए आपके वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चंस. ये हमें देखने हैं. इसमें क्या है, 1 sentence is given and 4 words are highlighted in bold, okay. और हमें देखना है कि इनकी पोजीशन जो है दीज हाईलाइटेड वर्ड्स इज सही है या नहीं, एंड इफ इट इज नॉट द करेक्ट पोजीशन वी हैव टू पुट देम इन द करेक्ट पोजीशन, और हमें स्वैपिंग करनी है, इंटरचेंज करना है, राइट. सो ट्राई फॉर दिस वन. Yeah friends, so now when we read this sentence, it says China restricts movement of intra-province inside the country and gives travelers visas for business provincial, which impacts professional visits. So when we read this, we know that this is not making sense. Now it should be that China restricts movement of what? Intra-province का मतलब क्या होता है कि दो स्टेट्स के बीच में, ठीक है, अमंग या अमंग डिफरेंट स्टेट्स, राइट. सो मूवमेंट किसका होगा, दो स्टेट्स के बीच में वाली कोई बात यहाँ पर है नहीं, राइट. सॉरी, इंट्रा प्रोविंस, आई एम सॉरी, इंटर प्रोविंस मीन्स कि दो स्टेट्स के बीच में या ज़्यादा स्टेट्स के बीच में. इंट्रा प्रोविंस मीन्स विद इन वन स्टेट, ऑलराइट. सो चाइना रिस्ट्रिक्ट्स मूवमेंट ऑफ व्हाट, प्रोफेशनल्स होंगे या ट्रैवलर्स होंगे, राइट. So let's see, let's try to fit professionals here. So it will say China restricts movement of professionals inside the country and gives travelers visas, right,
फॉर बिजनेस प्रोविंशियल, सो ये भी कोई सेंस नहीं बना रहा है. इट शुड बी एंड गिव्स प्रोविंशियल वीजाज फॉर business travelers, right, which impacts intra-province visits. So both A, D and B, C should be swapped. Option 4 is the correct answer here. All right. Now friends, these questions are very important. Important इसलिए because sometimes if the grammar knowledge of ours, you know, when we are sitting in the exam, हमें कोई रूल ऑफ ग्रामर अगर स्ट्राइक नहीं कर रहा है, उस टाइम पर कुछ ऐसा हो गया है दैट वी आर नॉट एबल टू सॉल्व ग्रामर, या हमें ग्रामर आता ही नहीं है, सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली हेल्प अस gain some marks abhi, kyunki these can be solved without the knowledge of grammar as well, right? Yes, definitely having the knowledge of grammar gives you an edge, but the thing is कि आपको ये help करता है, without the knowledge of grammar भी आप ऐसे question solve कर सकते हैं. all right, आगे देखते हैं. The story of India's population confirms that India has population a steady decline in its witnessed growth rate over the last 4 decades, right? So यहाँ पे थोड़ा sentence is not making sense, तो last 4 decades is making sense. all right, तो हम D की swapping नहीं करेंगे, तो जिन जिन options में D होगा हम उनको discard कर देंगे, right? तो ये ऐसी discard हो गई, हमारे पास केवल एक option बचा है B, C. हम straight away we can mark this as our answer, but फिर भी B, C को swap करके we will see once. It says the story of India's population confirms that India has witnessed a steady decline in its population growth rate over the last 4 decades, right? So yes, this is the correct answer. Only B, C requires swapping. all right, इसे ही आगे देखते हैं. So majorly आपने देखा होगा these kind of questions, they for the solving these context matters the most. all right, तो हम कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से इनको सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा वोकैबुलरी यूज कर सकते हैं, और अगर वो भी नहीं हो रहा है तो ग्रामर यूज कर सकते हैं इफ वी नो ग्रामर. बाकी अंडरस्टैंडिंग से सेंटेंसेस सॉल्व हो सकते हैं दीज क्वेश्चंस. नाउ रीड दिस वन प्लीज. आई एम गिविंग यू सम 10 seconds. Yeah, so this one says the argument that Congress and CPM are on opposite sides of the political independent in the Kerala isn't a compelling one, as state politics has its own logic which is fence of what happens elsewhere in the nation. all right, so it says you can say the argument that Congress and CPM are on opposite sides of the political what fence. okay, and let's swap B, D. So it says political fence in Kerala isn't a compelling one. Yes, argument can be compelling. So A and C are in their correct positions. So only B and D need to be swapped. So option 3 is the correct answer here, right? So let's move ahead and see. Okay, now word swapping we saw only 3 questions. Next we saw some questions of idiom also, as I have already discussed. So idioms के लिए it is very very essential. Most crucial thing is that you must know the meaning of the idiom, and if you don't know the meaning of that idiom or phrase, my advice is that do not attempt that question if you are not 100% sure, because the chances of error are a lot in such cases. So guesswork in idioms does not take you actually to far away places. वो थोड़ा difficult हो जाता है. So I will advise कि learn the idioms, and if you are अगर आपने learn नहीं करा है, if you face an idiom जिसका आंसर आपको पहले से नहीं पता है, you can read and try to find out the meaning, but only if मीनिंग से आप 100% श्योर हो गए हो, ओनली तब ही उसको अटेम्प्ट करें, अदरवाइज डोंट अटेम्प्ट इट. ओके, अब आगे देखें. इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू किक द कैन डाउन द रोड एंड लेट द नेक्स्ट जनरेशन टू सॉल्व द ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम. अब एक होता है किक द कैन, मतलब व्हेन समवन डाइज आप उसको बोलते हो किक द कैन, राइट? बट किक द कैन डाउन द रोड मतलब कि आपने, अब आप किसी को अगर इसका मतलब नहीं भी पता है या थोड़ा बहुत भी पता है, सो इससे आप थोड़ा आइडिया निकाल सकते हैं शायद
सेंटेंस पढ़कर कि आप अगर ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम किक द कैन डाउन द रोड मतलब करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन पर देते हैं, इट मीन्स कि आप अपनी प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि यू आर अवॉइडिंग टू डील विद दैट प्रॉब्लम, ठीक है। सो 2 इज द करेक्ट आंसर हियर, राइट। सो अभी अगर आपको उसका आंसर वैसे नहीं पता है, अगर ओरिजिनली आपको नहीं पता था, बट आफ्टर रीडिंग द सेंटेंस इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट द आंसर एंड यू आर 100% श्योर, देन ओनली मार्क दिस इज योर आंसर, ऑलराइट, बिकॉज द आंसर्स आर वेरी क्लोज, ऑप्शंस जो हैं दे वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द आंसर, राइट। सो मार्क 2 एज योर आंसर, ऑलराइट। नेक्स्ट इज the hotel claimed to have luxurious rooms, but when we went there we found the rooms so small and cramped that there was no room to swing a cat. Okay, this means what? No room to swing a cat. अब अगर मान लो आपको इनके आंसर्स नहीं पता है, राइट, तो आप क्या करेंगे? फाइंडिंग योर सेल्फ इन अ सिचुएशन दैट डजंट सूट यू, फिर आप सोचेंगे ये भी सही बैठ रहा है, और समथिंग विद अ रैंडम और अनप्रिडिक्टेबल आउटकम, आप सोचोगे ये भी सही बैठ रहा है, फिर आप टेंस अनेबल टू रिलैक्स फील कर रहे हो सकता है ये भी सही है, बट एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है? अ क्राउडेड और क्रैम्प्ड स्पेस, ऑलराइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन 2, बट आपको एग्जाम में गेस वर्क करना इडियम्स में स्पेशली थोड़ा डिफिकल्ट पड़ सकता है, भारी पड़ सकता है, सो इडियम्स में गेस वर्क ना करें, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही आंसर है। ट्राई टू लर्न एज मेनी इडियम्स एज पॉसिबल बिफोर हैंड, ऑलराइट। अब आगे देखते हैं, अगेन दिस इज सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ठीक है, इसमें क्या है? सम पार्ट इज हाईलाइटेड और आपको वो हाईलाइटेड पार्ट का आपको मीनिंग निकालना है, राइट। सो मतलब मीनिंग इन द सेंस वो हाईलाइटेड पार्ट गलत हो सकता है, आपको उसको सही पार्ट से आपको उसको रिप्लेस करना है, ऑलराइट। सो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में जैसे मैंने ये बोला, यहाँ पर एक इनकरेक्ट, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट पार्ट हाईलाइटेड हो सकता है, या एक फ्रेजल वर्ब भी हो सकता है जो इनकरेक्टली यूज्ड हो, राइट। सो फ्रेंड्स, अगेन डू नॉट इग्नोर फ्रेजल वर्ब्स। ये आपके SBI 2021 में आपकी फ्रेजल वर्ब्स देखने को मिले थे, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल काफ़ी एग्जाम्स में फ्रेजल वर्ब्स आ रहे हैं, तो फ्रेजल वर्ब्स को आप इग्नोर मत करना, पढ़कर ज़रूर जाना। आज ही हमारी क्लास हुई, उसमें हमने काफ़ी डिस्कशंस करा फ्रेजल वर्ब्स पे, काफ़ी एक्सरसाइज करी। सो आप भी ऐसे ही एग्जाम भी पे थोड़े मॉक्स में भी होगा अवेलेबल, पर अदरवाइज ऑल्सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग लॉट ऑफ फ्रेजल वर्ब्स, ऑलराइट। सो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट क्योंकि आता ही आता है, आप इम्प्रूवमेंट बोलो, करेक्शन बोलो, राइट। सो यहाँ पर ये जो है आप इसको लिख सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट में आपका फ्रेजल वर्ब भी आ सकता है और ये भी आ सकता है नॉर्मल ग्रामेटिकल, ठीक है। तो इसमें बोला गया है सैन सेबेस्टियन इज होम टू द Basque Culinary Center, set off a building designed to look like a stack of plates. Okay, so यहाँ पर अगर आप पढ़ें तो सेट ऑफ क्या होता है किस चीज़ को, अब आपको फ्रेजल वर्ब्स जैसे मैंने बोला पता भी होने चाहिए। सो actually the correct answer here is set in a building designed to look like a stack of plates, okay, because culinary center है ये, okay, इसीलिए। सो अगर आपको फ्रेजल वर्ब्स का मतलब पता होगा तो आपको पता होगा कि सेट ऑफ का मीनिंग क्या होता है कि कभी आप कहीं के लिए स्टार्ट हो रहे हो, ठीक है, यू आर स्टार्टिंग आउट समथिंग और यू आर सेटिंग ऑफ टुगेदर टू अ जर्नी, तब आप सेट ऑफ बोलते हो, ठीक है। बट सेट इन क्या होता है कि वहां पर वो बना हुआ है, सेट इन अ बिल्डिंग designed to look like a stack of plates, all right, so option 1 is the correct answer here, ठीक है। ये क्यों नहीं हो सकता है set for a building designed, so नहीं, set in उसके अंदर है, ठीक है। फिर अगेन set in a building designs गलत हो जाएगा grammatically, designs to look like, this is also wrong, so it should be designed to look like so and so, ठीक है। set for भी गलत है, building designer to look like, this also is making no sense, so yes, option 1 is the correct answer here, okay। next देखेंगे, my dad was an industrial mechanic and my mom cleaned the houses, so क्योंकि ये past tense में है, my dad was an industrial mechanic, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपके जो टेंसेस है वो आपका कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए थ्रू आउट, सो इट शुड बी माई मॉम क्लीन्ड द हाउसेज, ओके। सो क्लीन्ड यहाँ पर आना चाहिए, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर हियर, ओके।
सो आगे क्लीन्स द हाउसेज नहीं होगा, बिकॉज अगेन टेंसेस की बात है. मॉम क्लीन्स ये भी नहीं होगा. ओके, सो और मॉम के साथ बिकॉज इट इज सिंगुलर, सो क्लीन नहीं, क्लीन गलत है, क्लीन्स होना चाहिए. ठीक है, so cleans as in cleans is not the correct answer, but mom cleans is correct, but mom clean in itself is grammatically incorrect. All right, so now moving ahead, travel can be great then you get ridden from your schedule and completely go off the grid. So इसमें क्या कहा जा रहा है कि travel great हो सकता है if you get rid, excuse me, yeah, so travel can be great इफ यू गेट रिड ऑफ योर. ठीक है, सो इफ यू गेट रिड ऑफ क्या होता है, रिड के साथ हम क्या यूज करेंगे, इफ यू गॉट रिडन ऑफ ये नहीं होगा, इफ यू गेट रिड ऑफ. ओके, रिड ऑफ मतलब किसी चीज से आपको छुटकारा मिल जाए. ओके, उसको आप रिड ऑफ बोलते हैं. ये भी एक फ्रेजल वर्ब है. ऑलराइट, सो इट सेज कि ट्रैवल एकदम ग्रेट हो सकता है अगर आप अपने शेड्यूल से उसको छोड़ दें, उससे रिड ऑफ हो जाएं और कंप्लीटली ऑफ द ग्रिड चले जाएं, यानी कि नॉर्मल शेड्यूल ना फॉलो करें. ऑलराइट, सो फ्रेंड्स ये कुछ सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस थे. अब हम लोग इस सेशन में हमने क्या क्या देखा, इसमें हमने देखा एरर, इसमें हमने देखे आपके फिलर्स, इसमें देखा वर्ड स्वैपिंग, इडियम्स और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट. अब नेक्स्ट वाले में हम क्या देखेंगे, हमारे नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें हम देखेंगे आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड योर आरसी. तो हम आरसी देंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे, आप भी पढ़ेंगे. देन आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दैट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टू यू and that class will be held tomorrow at 4 p.m. So this is all for today friends, and if you have not subscribed to our channel please do, and do not forget to press the bell icon. और आप ये sessions जो हैं every day 4 p.m. हो रहा है, इनको आप ज़रूर ज्वाइन करें, because इन सेशंस की हेल्प से यू कैन एक्चुअली प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स दैट आर कमिंग फॉरवर्ड. फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको पैटर्न पता हो एग्जाम का. अगर आपको पैटर्न ही नहीं पता होगा यू विल नॉट बी एबल टू स्ट्रीमलाइन योर स्टडी. ओके, सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पैटर्न पता करें, और चाहें तो प्रीवियस ईयर पेपर्स भी लगाएं. प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको एग्जाम की वेबसाइट पर मिल जाएंगे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. सो फ्रेंड्स डू दिस थिंग, अटेम्प्ट करें और साथ साथ कॉपी पेंसिल लेके बैठें, सो दैट यू आर सॉल्विंग एज वी आर प्रोग्रेसिंग. ऑलराइट.